Here is the note down Bernoulli's theorem. For an ideal fluid, which is incompressible, non-viscous, which is non-viscous, incompressible, and flow of the fluid is streamlined and irrotational, and the flow of the fluid is streamlined and irrotational, then the pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit mass remain constant. Per unit mass remain constant. That is, it follows the law of conservation of energy. That is, it follows the law of conservation of energy. Here suppose a pipe through which law of conservation of energy. Suppose a pipe XY through which the ideal liquid flows. Suppose a pipe XY through which an ideal liquid flows. Pipe through which the ideal liquid flows. If A1, A2 be the area of cross section, if A1, A2 be the area of cross section, and V1, V2 be the velocities of the liquid at the two ends. V1, V2 be the velocities of the liquid at two ends. Then, according to equation of continuity, A1, B1 it is equal to A2, B2. It is equal to V. V means volume of liquid flowing per second. Volume of liquid flowing per second. Volume of liquid flowing per second. This is also equal to, you know that it is equal to density is equal to mass upon volume. So this can be written as volume is equal to m upon rho. It means this can be written here, right here, it is m upon rho. Volume of liquid flowing per second. A1, B1 is equal to A2, B2. It is equal to V. It is equal to m upon rho. Volume of liquid flowing per second. Here you see, V1 be the velocity of the liquid. V1 meter per second. Here V1 meter per second. Velocity of liquid. मतलब 1 सेकेंड में अगर ये V1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट. 1 सेकेंड में कितना लिक्विड फ्लो होगा? A1 B1. क्लियर? सो हियर यू सी A1 B1 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड. नाउ व्हेन लिक्विड फ्लोज, then what will be the change in kinetic energy? Change in kinetic energy. Here you see, since A2 is less than A1, so B2 will be greater than B1. जहाँ पर नैरो होगा वहाँ वेलोसिटी अधिक होगी. Is it clear? So change in kinetic energy, it is equal to half m V2 square minus half m
V1 square. Is it clear to all? वहाँ की काइनेटिक एनर्जी at the end y will be larger than the kinetic energy at end x. Is it clear? So change in kinetic energy, it is equal to half m v2 square minus half m v1 square. Change in potential energy, it is equal to mgh2 minus mgh1. Here you see h2 is greater than h1, so change in potential energy or increase in potential energy here mgh2 minus mgh1. Work done on the fluid. यहाँ पे जो भी लिक्विड किसी एक्सटर्नल एजेंसी से इस पर फोर्स लगाया जा रहा है तो लिक्विड ऊपर मूव करता है। एक्सटर्नल एजेंसी लिक्विड पे वर्क करती। वर्क डन ऑन द फ्लूइड, वर्क डन ऑन द फ्लूइड, here work done on the fluid W1, it is equal to force into displacement. Work done on the fluid per second लिख लेना, work done on the fluid per second लिख लो, per second. W1 it is equal to, here you see it is P1 A1 B1, P1 A1 B1. इसमें वर्क डन कैसे हो रहा है ध्यान रखना। Here you know that work is equal to force into displacement. डिस्प्लेसमेंट एक सेकंड में कितना हो रहा है V1, तो फोर्स into displacement V1 हो रहा है दिस और यह भी इक्वल टू कितना हो रहा है P1 A भी इक्वल टू Pn P1 A1 B1। तो ध्यान रखना कैसे वर्क हमने लिख दिया P1 A1 B1। एक सेकंड में लिक्विड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है V1 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? इट इज V1 मीटर पर सेकंड। फोर्स इस पर लग रहा है F इज इक्वल टू PA P1 A1 B1। सो वर्क डन ऑन द फ्लूइड पर सेकंड W1 इज इक्वल टू P1 A1 B1। इज इट क्लियर टू ऑल? वर्क डन ऑन द फ्लूइड, यहाँ पे फ्लूइड पे वर्क किया गया तो फ्लूइड यहाँ पर इस प्रेशर के अगेंस्ट, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके अगेंस्ट वर्क करेगा। सो वर्क डन ऑन द वर्क डन बाय द फ्लूइड, नो वर्क डन बाय द फ्लूइड, work done by the fluid against pressure P2, against pressure P2, it is equal to P2 A2 B2, here it is W2। Is it clear to all? वर्क डन, पहले एक्सटर्नल एजेंसी लिक्विड पे वर्क करती, फिर लिक्विड इस एक्सटर्नल प्रेशर का अगेंस्ट ऊपर चढ़ता, तो इट मींस वर्क डन बाय द फ्लूइड अगेंस्ट प्रेशर P2, इट इज W2। देयरफॉर नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन by the fluid, net work done W, it is equal to W1 minus W2 by the fluid, it is equal to W1 minus W2 net work done, it is equal to P1 A1 B1 minus P2 A2 B2। Is it clear to all? P1 A1 B1 इधर अप्लाई किया गया,
इसके अगेंस्ट वर्क किया तो नेट वर्क डन दैट इज इक्वल टू P1 A1 B1 minus P2 A2 B2. And here A1 B1 is equal to A2 B2, it is equal to M upon rho. So you can write here P1 minus P2 M upon rho. Already we have mentioned here A1 B1 is equal to A2 B2 is equal to B. It is equal to M upon rho. So in place of A1 B1 we can write as M upon rho. A2 B2 also M upon rho. P1 minus P2 M upon rho. According to conservation of energy, 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 net work by the fluid is equal to change in energy. Net work done by the fluid is equal to change in energy. Change in energy. सी वर्क करने के बाद क्या क्या चेंज हुआ? पहले वर्क किया गया, फिर चेंज क्या क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, ऊंचाई पे चढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया. सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी. जो हमने वर्क किया दो चीज चेंज आया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, पोटेंशियल एनर्जी में. देयरफॉर P1 minus P2 M upon rho, it is equal to half M B2 square minus half M B1 square plus mgh2 minus mgh1. M cancelled from both sides, so here you see P1 minus P2, it is equal to रो का मल्टीप्लाई हो जाएगा हाफ रो B2 स्क्वायर माइनस हाफ रो B1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1. इज इट क्लियर? तो M दोनों तरफ कैंसिल हो गया और M कैंसिल होने के बाद रो का मल्टीप्लाई हो गया. क्लियर? So here this implies that P1 plus half rho B1 square plus rho GH1, it is equal to P2 plus half rho B2 square plus rho GH2. This is rho GH2. P1 plus half rho B1 square plus rho GH1, it is equal to P2 plus half rho B2 square plus rho GH2. Here pressure energy, kinetic energy and the potential energy at each point means at this point is equal to at this point. Total energy is conserved.
जो एनर्जी यहाँ पे है टोटल प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वही एनर्जी यहाँ पर भी है एंड बोथ आर इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। This is the proof of Bernoulli theorem. Here P1 plus half rho B. Here you see at each point the energy is conserved. यहाँ पर velocity V1 है, height h1 है, total energy is pressure P1 half rho V1 square plus rho G h1. It is equal to P2 plus half rho V2 square प्लस रो जी एच टू। इस पॉइंट पर जो एनर्जी यहाँ है द सेम एनर्जी हियर आल्सो, इट मीन्स ईच एंड एवरी पॉइंट टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। सो दिस इज P प्लस हाफ रो V स्क्वायर रो जी एच इज कांस्टेंट। दिस इज द प्रूफ ऑफ द बर्नौली थ्योरम। इज इट क्लियर टू ऑल? एग्जाम में आता है स्टेट एंड प्रूफ द बर्नौली थ्योरम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। Here if the pipe is horizontal, here you see what you see here, if the pipe is horizontal, then what you see here, ये जो H1 H2 है that will be same हो जाएगा ऐसे। If pipe is horizontal, then what will happen? H1 is equal to H2. If H1 is equal to H2, then potential energy will be cancelled from both sides. Is it clear? Then P1 plus half rho V1 square, it is P2 plus half rho V2 square. ये दोनों एनर्जी कैंसिल हो जाएगी। बोथ आर एट द सेम लेवल, इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स P1 plus half rho V1 square is equal to P2 plus half rho V2 square. This implies that P plus half rho B square, it is equal to constant. P plus half rho B square, it is equal to constant. मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है तो टोटल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सेम हो गए, देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इट मींस इन दिस केस प्रेशर एनर्जी प्लस हाफ रो V स्क्वायर, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका एप्लीकेशन एटोमाइजर जो स्प्रे होता है वहां पे दिखता है, यू कैन सी हियर। एटोमाइजर में हम देखेंगे ये एप्लीकेशन है बर्नौली थ्योरम का। एटोमाइजर में एटोमाइजर मीन्स स्प्रे। जब हम यहाँ पे इसको प्रेस करते हैं एयर की वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ जाती है, वेलोसिटी इंक्रीजेज। यहाँ पे हियर यू सी P plus half rho V square, it is equal to constant, means pressure energy plus kinetic energy remain constant. If velocity increases, अगर एक दोनों मिलकर कंजर्व, अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। इफ वेलोसिटी इंक्रीजेज हियर, देन व्हाट विल, यहाँ एयर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ जाती है, वेलोसिटी इंक्रीजेज, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, देन प्रेशर डिक्रीजेज। तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा और यहाँ का प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा। तो ये इट इज द लो प्रेशर, it is low pressure and here it is
high pressure, what will happen? Due to pressure difference, liquid flows upward. और जब लिक्विड ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे एयर की वेलोसिटी अधिक है, ये बाहर आ जाता है। फिर नोजल को पतला कर देते हैं, एरिया कम कर देते हैं, तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एंड इट फ्लोज आउट वेरी फास्ट। दिस इज द यूज ऑफ द बर्नौली थ्योरम। एक्सप्लेन करने को आता है, एक्सप्लेन द एटोमाइजर ऑन द बेसिस ऑफ द बर्नौली थ्योरम। एप्लीकेशन इज क्लियर टू ऑल। It is atomizer on spray. Here, when atomizer is pressed, the velocity increases, then the kinetic energy increases, and according to Bernoulli theorem, when kinetic energy increases, then the pressure decreases. Is it clear? When the pressure decreases, then lower pressure is more than this upper pressure. As a result, liquid flows up, and due to larger velocity it moves outward. The area of the nozzle, it is smaller, so the velocity of the liquid will be larger. अगर एरिया कम हो जाती है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द एटोमाइजर। तो ये चीज हमारा है, ये बर्नौली थ्योरम, P plus half rho V square is equal to constant। और ऐसे ही हार्ट अटैक में भी बर्नौली थ्योरम यूजफुल है। कैसे? आर्टरीज है ना, आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल आ जाता है तो ये नैरो हो जाता है। अगर नैरो हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 AB इज इक्वल टू कांस्टेंट, एरिया नैरो तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया इज नैरो, वेलोसिटी विल बी लार्जर। इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, then kinetic energy increases. Kinetic energy of the blood will increase, and when the kinetic energy increases, then pressure decreases. Inner pressure decreases. Outer pressure is larger than the inner pressure. Then what will happen? It will compress the artery, and so there will be difficulty of the blood circulation, and so the heart attack may occur. Is it clear? तो अगर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो होता क्या? इसका बर्नौली थ्योरम के एप्लीकेशंस हैं कि हाउ द यू कैन एक्सप्लेन द हार्ट अटैक विद द हेल्प ऑफ द बर्नौली थ्योरम। तो ये एप्लीकेशन है कि here it is due to cholesterol the artery become narrow, so the area decreases, so the velocity increases. As a result, kinetic energy increases. Inner kinetic energy increases, then here the pressure decreases. Outer pressure is larger than the inner pressure that compress the artery, and so there is a difficulty of the blood transportation. Blood के flow होने में problem आ जाती है, and that is the basic cause of the heart attack. Is it clear to all? This is the application. और इसके applications हैं blowing of the roof. ये जो छप्पर होती है उड़ जाती है ना, blowing of the roof. देखो, ब्लोइंग ऑफ रूफ, जब भी कभी हवा तेज चलती है, अगर खिड़की बंद है तो अपर सरफेस की वेलोसिटी बढ़ जाती है। वेलोसिटी इज लार्जर, यहाँ पे लार्ज वेलोसिटी होगा। जहां पे वेलोसिटी अधिक होती है, प्रेशर कम। अपर प्रेशर, इट इज द लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया। और यहाँ पे प्रेशर हाई है। हाई मीन्स यहाँ का प्रेशर मेंटेन है, यहाँ का प्रेशर बहुत लो हो गया। तो
lower pressure is higher than the upper pressure, what will happen? This roof blows. इसीलिए बहुत तेज आंधी आए तो खैर छत तो नहीं हो पाती है, लेकिन वो जो छप्पर होते हैं उस पर ऊपर का प्रेशर बहुत कम हो जाता है और नीचे का प्रेशर बढ़ जाता है, तो लोग और ढकने लगते हैं कि कुछ न हो, तो होता क्या है और पैक हो जाता है और फिर ऊपर से छप्पर ही उड़ जाती है। बस समझा रहे नहीं, कंसेप्ट समझा रहा है। तो बर्नौली थ्योरम का ये एप्लीकेशन है। तो खैर ये इस तरह की छत तो नहीं उड़ा पाता, लेकिन जो गरीब होते हैं उनकी जो झोपड़ियाँ होती हैं वो ढक के रखते हैं। जब आंधी आती है तो सोचते हैं हम सेफ कर दें तो अंदर गंदगी ना आए, आंधी वगैरह में गंदगी आ जाती है, तो उसको बचाने के लिए ढक देते हैं। रिजल्ट क्या होता है? लार्ज एरिया, इस पर लार्ज वेलोसिटी होती है तो लो प्रेशर एरिया बन जाता है और यहाँ का प्रेशर हाई रहता है और उड़ जाता है, तो पूरा बचाने के चक्कर ऊपर उड़ जाता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो बर्नौली थ्योरम का ये एप्लीकेशन है। और स्पिनिंग ऑफ बाल में भी इसका एप्लीकेशन, मैग्नस इफेक्ट इसे कहते हैं। जो बाल की जो स्पिनिंग होती है उसमें भी बर्नौली थ्योरम काम की। स्पिनिंग ऑफ बाल, ये एप्लीकेशन समझ आ रहे हैं? P plus half rho B square is equal to constant. Spinning of ball, Magnus effect. Here you see the Magnus effect. When ball spins, what happens? बॉल जब स्पिन करेगा तो इसके कांटेक्ट में जो एयर होगी उसकी वेलोसिटी वही होगी जो बॉल की वेलोसिटी होगी। तो बॉलिंग करते समय जब स्पिनिंग किया जाता है तो अगर ये स्पिन कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसके संपर्क में जो एयर होगी, मान लो वेलोसिटी u, हियर इट इज वेलोसिटी u, यहाँ पे स्पिन कर रहा है। इधर इस कांटेक्ट की जो एयर है, इट्स वेलोसिटी इज u एंड दिस वेलोसिटी इज u। क्लियर? अब जब ये मूव करना, रोटेट करना, जैसे ऐसे स्पिन करना शुरू करेगा तो इसके जो कांटेक्ट में एयर होगी उसकी वेलोसिटी u होगी, दोनों सरफेस पर। अब यहाँ पर जब ये आगे बढ़ेगा तो वैक्यूम विल बी क्रिएटेड बाय दिस बॉल। यहाँ जो वैक्यूम क्रिएट होगा, दिस विल बी फिल्ड बाय द फ्रंट एयर। तो फ्रंट एयर तेजी से भागेगी, इधर भागना शुरू कर देगी। मान लेते हैं एयर की वेलोसिटी v, व्हाट विल बी द नेट वेलोसिटी? u minus b. What will be the net velocity? u plus b. Is it clear to all? यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट वेलोसिटी u minus b. Here u plus v. Here velocity decreases. Upper surface has the velocity decreases. Lower surface velocity increases. What happens as a result? Here, due to smaller velocity, pressure will be larger according to Bernoulli's theorem. अभी Bernoulli theorem हमने बताया कि P plus half rho V square it is equal to constant. P plus half rho V square it is equal to constant. So upper surface has the lower velocity, lower surface has the larger velocity, upper surface has the low pressure. तो लो प्रेशर का रीजन बन जाता है ऊपर, लो प्रेशर, और यहाँ पे हाई प्रेशर। वेलोसिटी कम तो प्रेशर अधिक, इट इज हाई प्रेशर। अब जब ये लो प्रेशर हुआ है, हाई प्रेशर हुआ, तो क्या हो जाता है, ये तेजी से ये अपने, अब यह सेम प्लेस पे नहीं रह पाता, अपने स्थान से स्विंग कर जाता है, कुछ ऐसे चल करके ऐसे। तो पता लगा कि उसे आना चाहिए अपने स्ट्रेट पाथ में, और वह आ करके बैट्समैन के पास कहीं यहाँ पे है और सीधे वह विकेट को हिट कर देता। स्पिनिंग में यही होता कि यहाँ पे
ड्यू टू मतलब प्रेशर चेंज हो जाता है अपर और लोअर का, और इसलिए बाल जो है स्विंग कर जाती है। तो इस तरह से ये जो हो जाता है, दिस इज द स्पिनिंग ऑफ बाल, मैग्नस इफेक्ट इसे कहते हैं। इट इज द स्पिनिंग ऑफ बाल, इट इज द मैग्नस इफेक्ट। तो ये ध्यान में रखना कि इन दिस वे एंड अदर एप्लीकेशन इज आल्सो। अभी देखते हो बच्चे ऐसे फूकते हैं तो एक बाल कभी ऐसे उड़ता है, छोटा छोटा खिलौना 10-15 रुपये मिलता है, तो ऊपर ही गिरता नहीं है। क्यों? जब फूकते हैं तो यहाँ एयर की वेलोसिटी अधिक होती है, तो प्रेशर यहाँ कम होता है, बाहर की वेलोसिटी अधिक, बाहर का प्रेशर अधिक होता है। तो जब तक फूकेंगे तब तक वो बाल ऐसे रहता, गिरता नहीं, और जब फूकना बंद कर देते हैं बाल नीचे गिर जाते हैं। ये भी बर्नौलीज थ्योरम। ऐसे फूकते हैं तो यहाँ पे एयर की वेलोसिटी अधिक तो प्रेशर लो, आउटर प्रेशर इज लार्जर देन द इनर प्रेशर, सो दैट मेंटेन्स द बाल एट ए पर्टिकुलर हाइट when air is blowing. Here अभी ट्रेन अगर आ रही है तो ट्रेन के बगल में जब चलती हुई ट्रेन के सामने कभी नज़दीक नहीं होना चाहिए। होगा क्या? एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है, एयर की वेलोसिटी बढ़ी तो क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर कम हुआ और बाहर का प्रेशर अधिक हाई है, पुश कर देता है, लोग पटरी पे गिर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब ट्रेन आए तो नज़दीक मत खड़े होना चाहिए। दो नाव है अगल बगल है, अगर तेज़ी से कभी आए दो स्टीमर, तो उनके अगर बहुत करीब आ गए, उनके बीच की एयर जो होती है उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। रिजल्ट क्या होता है? प्रेशर कम, आउटर प्रेशर लार्जर, कोलाइड कर जाता है। स्टीमर्स के कोलाइड करने की संभावना बहुत होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है ये बर्नौली थ्योरम का ये एप्लीकेशन है। इज इट क्लियर टू ऑल? इसी बर्नौली थ्योरम के बेस पर है, एक है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स और टॉर्सियली थ्योरम, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। कितना मिनट हुआ? 32। इसको अब करके भी वो जो है बंद हो जाएगा, और कर दो। अब फिर दूसरा कर